by asking you all a question that resonates with each and every one of us. How many times have you held back, hesitated, or let an opportunity just slip away? Not because you lacked the talent or the skills, but because you simply doubted your own worth. How many times have you looked at others and wished, man, I wish I had their confidence, without realizing that the only thing standing between you and your goals is your belief in yourself? Imagine what you could achieve if you truly believed in yourself. Imagine the opportunities you'd seize, the risks you take, and the success you'd find. Today, we are incredibly fortunate to have with us someone who has dedicated years of her life to helping people answer that question in the most powerful way possible. She is a seasoned trainer and educationist who understands the profound impact that self-esteem has on our success. Her work isn't just about teaching people skills or strategies. It's about helping them unlock the most important key to their success, which is unshakable self-esteem. It means building a foundation so strong that no setback, no criticism, or no failure can ever make you question your worth. Now, with a big round of applause, please help me welcome Miss Mehreen Masood. Thank you very much, Mama. So nice of you. Assalamu alaikum, everybody. So nice to see all of you here, right in the morning time, wo bhi Sunday wale din. So good to see. I was not expecting that. But thank you very much, Jilani sir, to give me the opportunity to be here with them. So, she has already given a very nice introduction. So, about me, if I talk about, I am a trainer plus educationist. I have been in this field from past 3 decades, or more than that even. Right now, I am teaching in a university and I am a part of US Council project, that is English scholarship program, Access to Scholarship program. You might have heard about it. It's very famous among the students nowadays. So, and I have worked with different schools in administration. So, when he called me for that, so it was my pleasure to be here. You might have heard me somewhere on any channel or somewhere. So it's so good to see you people here on Sunday. I hope that we are going to learn from each other. I'm not here to teach you something, to tell you something. Everything is within us. We are just going to explore it together, and we are going to talk about few things which might we have heard before as well, or might going to explore it for the first time now. So, I think I am audible because teachers के पास एक बड़ा अच्छा पावर होता है, आवाज बड़ी जोरदार होती है हमारी. मैं कोशिश करूँगी बगैर माइक के अगर आप लोगों तक पहुँच सकूँ. Can you hear me at the back? Yes. Right, that's very good. जी, आले साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही आवाज? अच्छा, हेयरिंग प्रॉब्लम. हाँ, मैं कोशिश करूंगी और जोर से बोलूं ताकि आप तक आवाज आ जाए. ठीक है? और आपके पास ही खड़े होकर बोलूंगी ताकि आपको सारी आवाज आए. अच्छा जी. So, in the introduction you heard about 2 words. The words were self-esteem and self-confidence. So anybody who can tell me what is self-esteem and what is self-confidence? What is self-confidence? Self-confidence. जी अपने ऊपर भरोसा होना मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ. Absolutely right. You know that you can do something. That is your self-confidence. And what is self-esteem? जी. अपनी respect. अपनी respect करना. The respect you have for yourself. All right. Your respect for yourself or your word. हैं क्या हम? जब तक खुद नहीं जानेंगे, until or unless self-awareness is not there, you will not reach to self-esteem.
सबसे पहले अपने तक पहुंचना है क्या हम, और फिर हमें बताना है कि हम कर क्या सकते हैं, है क्या हमारी वर्थ क्या है करने की. सो कैन यू गिव वन adjective to yourself, like one quality which you think is there in you? Any adjective which you can give to yourself? Yes, please. Doer. Doer. Okay. Ji. Responsible. Responsible. Dependable. Compassionate. Mature. Okay. छोटी सी बच्ची बड़ी mature. Hardworking and passionate. Hardworking and passionate. Right. Anybody else? Yes, please. Honest. Honest. Right. Curious. Curious. Okay. आपकी एज ही ऐसी है. You should be here. Commitment पूरी करना. Commitment. अच्छा, commitment पूरी करना. Like you are committed. That's very good. जी. Persuasive. Okay. Anybody else would like to share? Resilient. Resilient. Okay. कुछ बोलना चाहती हैं? बोल दीजिए. Thinker. Thinker. Okay. अपने आप को एक क्वालिटी बतानी है, अपने आप को एक लफ्ज देना है सिर्फ. Lenient and soft spoken. जी. Creative. सोचिए कोई एक क्वालिटी जो हम अपने आप को दे सके. जी. Diplomatic. Very much necessary nowadays. Character. Okay. Never give up. Huh? Never give up. Okay. Never give up. Helping others. Helping others. सोचो. Believer. हाँ, believer. जी. Creative. Innovative. Innovative. चलो एक बच्चा इतना सारा अपने बारे में सोच सकता है, जो नहीं सोच सकता खुददार. खुद ही तो इकबाल की चीज है भाई. इकबाल की खुद ही को अगर ना फैलाया हमने तो क्या किया फिर. जी. और कोई? अच्छा जी. अब ये सोचा है कभी कि ये इतना मुश्किल क्यों होता है अपने आप के लिए एक तारीफ का लफ्ज निकालना? Why we cannot say this? क्यों नहीं कह पाते? क्या होता है हमारे अंदर? Doubt. डाउट होता है. ओके. हेजिटेशन होती है. और आई थिंक डिपेंडेंसी भी होती है कि हम दूसरों से अपने लिए तारीफ के अल्फाज ज्यादा सुनना चाहते हैं. हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंड होते हैं बजाय इसके कि हम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम को पहचानें. दूसरों का इंतजार करें तो दूसरे तो बड़े मुखलिस होते हैं बोलने में. इधर आपने कोई अच्छा काम किया, लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए. जी. यस. हमें अपनी वर्ड का नहीं पता होता. असल में हमें क्या लग रहा होता है? डर लग रहा होता है. फियर. यस. जी. इसी से जब आगे जाते हैं तो फिर सेल्फ स्टीम को पहचानना और अपनी वर्थ को पता चलता है. जब इस फियर से बाहर नहीं निकल पाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या सकते हैं, है ना. इसीलिए सबसे अहम चीज जो है ना वो यही है. सो हम कहते हैं कि सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ लव आर द वर्ड्स विच आर ऑपोजिट टू फियर. हम यही फियर को ओवरकम करने के लिए आए ना. सो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ लव आर द ऑपोजिट्स ऑफ फियर. The more you will love yourself, the more you will believe in yourself, the more you are going to achieve. This is not said by me. This is said by Brian Tracy. So, जब हमने ये देख लिया कि हमें अपनी वर्थ पहचाननी है, तो फिर हमने अपने बारे में ये भी जानना है कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है. अभी तो यही नहीं पता चला कि अंदर है क्या. जो हमारे अंदर है वो हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ्स होती है हमारी. और जो नहीं होती है हमारे अंदर वो क्या होती है? हमारी वीकनेसेस होती है. तो क्या करना चाहिए? वीकनेस है तो फिर थोड़ा सा शर्मा लेना चाहिए, थोड़ा सा झिझक लेना चाहिए, कहना चाहिए नहीं आता, नहीं कर सकते, है ना. ऐसे ही करना चाहिए. क्या करना चाहिए? स्ट्रगल करनी चाहिए, वीकनेस को ओवरकम करना चाहिए. राइट. तो कहना तो बहुत अच्छा लगता है. कौन कहता है मेरे अंदर वीकनेस है जी, मुझे तो नहीं आता और ना ही मुझे आएगा कभी भी? कहते हैं हम ये. सबसे पहले अपनी वीकनेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. राइट. So it is a very important step in your growth that you must first understand क्या Knowledge क्या है. नॉलेज Right. जो कि हम कई दफा नहीं करते. उसको हम दबा देते हैं.
So that is the first step towards growth, is to know Exactly. what your weakness is. थैंक यू वेरी मच जी We should embrace of who we actually are. ओके यस एग्जैक्टली भाई जैसे हैं जैसा बनाया गया है वही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बने थे वही रहेंगे। मतलब कहा जाता है ना कि गरीब पैदा होना तो चले आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब बनना तो आपके हाथ में था ना। तो ये भी नहीं कि जैसे पैदा होते वैसे ही चले जाएंगे। So for that we have to set our goals and to think that we are going to remove our weaknesses, and for that we have to work on them. और सबसे मुश्किल काम क्या होता है? काम करना ही तो सबसे मुश्किल होता है। कहना तो बड़ा आसान होता है, कैसे यस हमारे अंदर ये हम सही कर लेंगे, कब तक, कैसे और किस तरीके से, जैसे हैं वैसे ही करके बैठे रहना तो बहुत ही आसान काम है। ऐसे ही आए थे ऐसे ही चले जाएंगे, नो इश्यूज। So here we are together. We know that you all know what is like self-esteem. Like एक मीनिंग्स तो समझ में आ गए। अगर सिंपली एक वर्ड कहेंगे तो सेल्फ एस्टीम इज योर सेल्फ respect and your self worth, right? It is your worth. So जब अपनी वर्थ को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना है, जैसे मैंने कहा दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। फॉर सेल्फ अवेयरनेस वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर वीकनेसेस एंड आवर स्ट्रेंथ्स। इसके अलावा भी दो और चीजें होती हैं जिनको हम करते हैं। किसी ने हैव यू एवर हर्ड अबाउट जोहारी विंडो? Yes. सुना है? वेरी गुड। सो व्हाट इज जोहारी विंडो? हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन इट? 4. There are 4 windows. Very nice. So what are those 4 windows? Open area है, land areas है, grey areas Right. हैं, और फिर dark area है. Right. So there are 4 areas which we are talking about here. एक तो वो जो हम जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं हमारे बारे में, that is open to all, everybody knows about it. Arena. Sorry. Arena. Yes. And then something is hidden, which sometimes people know, we do not know. There are few things which we also know, people also know. And at the end we have a blind corner, जिसके बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं होता कि हम ये भी कर सकते हैं। वो चीज जब सामने आती है, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी। तो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। बाज रिस्क कैसे होते हैं, जिसको कहा जाता है शेख चिल्ली की तरह वाला रिस्क है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए, ऐसा वाला रिस्क ले ले, है ना? ऐसा वाला रिस्क तो नहीं ले सकते ना, ऐसा वाला रिस्क नहीं ले सकते। हर अंडे के लिए एक टोकरी लेनी चाहिए। और अंडा टूट जाने का दुख भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक अंडे टूटेंगे नहीं, आपको कैसे एक्सपीरियंस होगा? अगर उस अंडे के टूटने का दुख लेके बैठ गए तो फिर आगे तो नहीं बढ़ सकते। इससे बेहतर मूली खा ली। लेकिन आजकल हाँ, अंडे टूटेंगे नहीं तो ऑमलेट भी कैसे बनेगा, राइट? सो इट इज अ मेजर in which you find out your own worth, your values, your respect, and you feel confident about it. हमने बात की थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ एस्टीम की। कोई फर्क है इसमें? फर्क है? थोड़ा सा है शायद। थोड़ा सा है। हाँ, उसी फर्क को हम डिस्कवर कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज a can-do attitude. Yes, I can. Self-esteem is yes, I will do it. I can do it and I will do it. But can do वाला जो attitude होता है ना, वो बड़ा careful होता है।
if you do not know, might be you are going to do something for the first time. You all have like seen these situations in your life. You might have seen the situation in your life when you are doing something for the first time. तो आप ये सोच लें कि हाँ, ये तो सोचना है कि yes I can do, लेकिन क्या वो can do बगैर किसी प्रिपरेशन के हो सकता है? तो अगर अच्छा लगना है कहीं पर, तो उसके लिए तो लड़कियां कब से काम शुरू करती हैं? सिर्फ सुबह से? बताए नहीं ना? आपको क्या पता कब से काम शुरू होता है अच्छा लगना? एक अच्छा लगने की कीमत आप क्या जान रहे हैं? जी, डेट से पहले काम शुरू हो जाता है, काफी पहले उसके ऊपर। अगर आखिरी दिन काम शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अगर किसी चीज को अचीव करना है तो उसके लिए काम करना होगा। That is work hard for that। और क्या ये हो सकता है कि अगर किसी चीज के लिए कोशिश की जाए और वो ना मिले? अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हर इंसान को वो कुछ देता हूँ जिसके लिए वो कोशिश करता है, और साथ में उसने ये भी बताया है कि अगर नहीं मिलता तो उसमें आपकी बेहतरी होती है। तो पहले तो ये सोच लेना है कि जिस चीज के लिए मैं कोशिश करूंगा वो जरूर मिलेगी। उसके बाद का सेकंड स्टेप शुरू होता है कि अगर ना मिला तो क्या होगा? जो हमने तो सोचा था, अगर इतना ही आसान हो जाता ये समझना और सीखना, तो फिर खुदकुशी क्यों कर रहे होते? ये जो ब्रिजेस के नीचे इतने मफलूकुल हाल और ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो रियलाइजेशन नहीं होती कि अगर नहीं हुआ तो वो फेथ नहीं होता कि अगर नहीं मिला तो इसके अंदर कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो सारी चीज घूम फिर के आ गई हमारे बिलीफ के ऊपर, और किसके ऊपर? हमारे ऊपर। हम उस चीज को मिलने को किस तरह परसीव कर रहे हैं और ना मिलने को किस तरह ले रहे हैं। If something is there within our reach, तो अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है कि जो कुछ दिया है वो मैंने दिया है, और जब चाहूँ तुमसे वापस भी ले सकूँ। तो फिर गुरूर किस चीज का? तो फिर अकड़ किस चीज का? फिर ना मिलने पे रोना किस चीज का? कम मिलने पे दूसरे से कंपैरिजन। कौन कहता है कि मैं कंपैरिजन नहीं करता? साहब इतने अच्छी सी ड्रेसिंग करके इतने अच्छे से तैयार वैयार हो गया है माशाल्लाह से, सबका दिल चाह रहा होगा देख के कि भाई बहुत अच्छे से आए, बड़े अच्छे से। आप सब लोग भी बहुत अच्छे से आए, आई डू नॉट मीन टू से दैट। लेकिन क्या हमें देख के दूसरे को एक ख्वाहिश नहीं होती कि यार ये उतरा है इस गाड़ी से और मैं उतरने जा रहा हूँ ऑटो से? ऐसा होना कि कोई ना देखे इसको, तो ऑटो को जरा सा पीछे रुकवा लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी से अंदर चले जाएंगे। तो व्हाट? क्या इतना कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर? इस कॉन्फिडेंस के अंदर कोई बुराई नहीं है। So this confidence is fine, but where to develop that confidence and where not to develop that is important. तो जो हमने गुरूर वाली बात की, वहां पे हमें कॉन्फिडेंस को इतना डेवलप नहीं करना कि जी जो कुछ मिल गया हमारी मेहनत से मिल गया, हमारे काम से मिल गया, हमारी वजह से मिला है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी ना। लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है, इट्स ओके। आज अगर रिक्शे से उतर रहे हैं तो कल गाड़ी से भी उतरेंगे, आज इस गाड़ी से उतरेंगे कल इससे बेहतर गाड़ी से भी उतरेंगे। ये कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? व्हेन यू मेक योर प्लान राइट, व्हेन यू मेक सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ, व्हेन यू प्लान योर स्ट्रेटजीज। के लिए एक वर्ड होता है प्लान के लिए और भी, when you make up your mind for something, when you make up your mind, improve weakness, when you improve your weaknesses, mission and vision statements, right, when you make your vision। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है। विजन से पहले, विजन के साथ ही जब विजन बन जाता है तो उसके बाद एक और चीज बनानी, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग करनी जरूरी जी। योर मिशन कम्स फर्स्ट, देन योर विजन कम्स। कहाँ देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या डायरेक्शन है। देख तो लिया, खौफ तो मेरे भी बहुत है,
किसका दिल नहीं चाहता होगा कि मैं भी लैंड क्रूजर से उतरूं भाई, दिल तो सबका चाहता है। फिर क्या करना है, गोल्स बनाने हैं ना। और गोल्स कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। गोल होने कैसे चाहिए, Fresh program. स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, एस इज फॉर स्पेसिफिक, measurable, अचीवेबल, रेलेवेंट, रिलायबल एंड टाइम बाउंड। क्या जब कोई गोल बनाता है तो ये सारी चीजों को जहन में रखते हैं, 5 चीजों को? एक तो जहन में रखना, एक तो ये सोचिए जहन में रखना, दूसरे ये सोचिए कि एक तो ये कि जहन में रखना, और दूसरे ये कि सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने गोल्स को डिसाइड करने का। लिख लेना चाहिए। लिख लेना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। एक तो लिख लेना चाहिए क्योंकि जो लिखी हुई चीज होती है वो ज्यादा हमारे जहन में रहती है। इसके अलावा भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, डेली देखना। डेली देखना चाहिए, बिल्कुल। और ख्यालात और अमल को तरतीब देना। manifestation, Actions decide करने चाहिए. एक्शन डिसाइड करने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है किसी को बता दो, जीने नहीं देगा वो, जीने नहीं देगा, हर थोड़े दिन बाद याद दिलाएगा, आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, आप तो ये बने नहीं। अब इससे मुंह छुपा के घर में छुप जाना चाहिए क्योंकि हमने तो बता दिया किसी को, हम तो बाहर ही नहीं निकल सकते, ईगो आ गई। फिर क्या करें, छुप जाए घर से, घर में बाहर निकलना बंद। अगर घर वालों को बता दिया तो घर वाले ही नहीं जीने देते, हम तो अम्मा अब्बा है ना, हमें पता है हम अपने बच्चों का जीना दुबर कर देंगे। पूछ ले, बैठे हुए सब ऐसे बताएंगे, अम्मा अब्बा से बड़े दुश्मन कोई मिलेंगे, उठते बैठते ताने मिलेंगे। छुप कर मुराकबा शुरू कर देंगे। Perseverance. जी मैडम, ये गोल सेटिंग से पहले क्या जरूरी नहीं होगा सेल्फ एनालिसिस कर ले इंसान अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस? जी जी ये पहले स्टेप ये नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? जी, हमने उससे बात की थी। थैंक यू वेरी मच। तो अगर अम्मा पापा को बता दिया फिर तो गली मुक गई भाई, वो तो जीने ही नहीं देंगे। तुम इस तरह सोते रहोगे, वीडियो गेम खेलते रहोगे तो करोगे ये जो तुम कह रहे थे ये अचीव करोगे, ये यूं होगा, सोने से मिलेगा तुम्हें। तो इस पे तो आपको रोना चाहिए, अल्लाह किसी बड़ी गलती कर दी अम्मा पापा को बता के हमने, है ना? नहीं, फिर वही बात आती है, हाउ डू यू परसीव दैट, हाउ डू यू टेक इट। बस कह दीजिए कि अगर ये कह रहे हैं मुझे ऐसा तो मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा, और कम पढ़ के सो के भी दिखाऊंगा वो वाला काम करके। And then it will give you motivation to achieve your target, to achieve your goal. बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे जानने वालों में, इतनी फैशनेबल बच्ची जिसको हर एक फैशन के सिंबल के तौर पे रखता था कि ओ हो बस फैशन तो इसी पे शुरू है, इसी पे खत्म है, डॉक्टर बन गई, बन के दिखा दिया उसने, बंद कर दिया ना सबका मुंह। अब क्या फैशनेबल डॉक्टर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा, अगर आपने उसको नेगेटिवली ले लिया और सोच लिया यार ये तो लोग मेरे फैशन पे करते हैं, मेरी पिक्चर्स पे यूं करते हैं और ये करते हैं, तो ये वाली चीज तो नहीं होगी जो अचीव करनी है, जिसको अचीव करके लोगों का मुंह बंद करना है। वो मुंह बंद करने वाली चीज भी तो हमारे ही हाथ में है। तो इफ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट एंड इफ वी आर गोइंग टू achieve our goal, then the work is done. We were talking about this like अच्छा, हमारे पास जब स्ट्रेंथ्स होती हैं तो कौन सा इंसान है जिसके अंदर वीकनेसेस नहीं होती? है कोई ऐसा? कोई आपकी नजर में एक ऐसा हो तो बताइए।
है कोई? और अगर होगा विदाउट वीकनेस के तो वो क्या कहलाएगा? इंसान, फरिश्ता कहलाएगा ना। फरिश्ते होते हैं इस दुनिया में, है ना? तो फरिश्ता बनने की भी जरूरत नहीं है। एडमिट कर लीजिए है मेरे अंदर ये खामी, लेकिन उसको दूर ना करना बड़ी गलत चीज है। भाई हम सब में होगी, चले अपनी अपनी बता दीजिए कोई एक वीकनेस। मैं बता दूं, खाना वाना बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता था, शुक्र अदा करती हूँ मैं अपने इन-लॉज का। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मुझे लोग बड़ा चढ़ाते हैं, बड़ा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि भूल गई क्या कहा था, भूल गई क्या कहते थे तुम्हें। मैंने कहा उसी को तो नहीं भूली हूँ, तभी तो पका रही हूँ आज। सो आई टुक इट पॉजिटिवली। किसी ने कह दिया नहीं पका सकते, नहीं कर सकते, हमने कहा लो करके दिखा देते हैं। लग जाते हैं आज ही से और करके दिखा देते हैं। तो आपको ये नहीं कह सकता कि प्रोफेशनल है, घर से बाहर जाती है, देखो खाना पकाना नहीं आता, देखो घर भी संभालना नहीं आता। घर संभालने में बात हुई, बाहर कैसे जाएंगे, घर कैसे संभालेंगे। हमने ऐसे संभाला कि लोगों ने कहा 3 बजे रात को भी इनके घर में आ जाओ, कोई चीज तुम्हें इधर से उधर नहीं मिलेगी। हो गया कॉम्प्लीमेंट, खत्म हो गई कहानी, सुकून मिल गया दिल को, हो गई तसल्ली। जान मारनी पड़ी उसके लिए, ऐसा तो नहीं है कि खुद ब खुद हो गई चीजें। तो एनी वीकनेस व्हिच यू पीपल वुड लाइक टू शेयर। अभी तो हमने एक अच्छी बातें शेयर की थी, लाइक स्ट्रेंथ। ओके, वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ अस। अभी तो जो पीछे वाले साहब बैठे हैं वो सबके पास मोबाइल होता होगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र है नहीं है किसी के भी हाथ में, बट मोबाइल तो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके बगैर कहाँ सांस आती है हमारी। जी गलत बात गुस्सा आता है, गलत बात तो गुस्सा आता है। अच्छा, सही बात थोड़ी आती है। ओवर थिंकिंग, रिएक्ट जल्दी कर लेते हैं। जी, inability to wake up early in the morning. okay, right. Overthinking. Overthinking. I struggle with calculations a lot, so I do not feel confident while I'm giving answers to teachers. So I just keep them to myself, even though when it's correct. Correct. Right. Yes. So generally, everybody share their personal weakness. If we go to the professional area, वहाँ पर we can't get assess our professional weaknesses. सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, they did very well, और उसके बावजूद उनको उस तरह की प्रोफेशन नहीं मिल रहा। So that's the biggest issue with everyone. अगर 360 फीडबैक आता है तो फिर आगे चलती है कि लोग क्या वाकई सोचते हैं। Like you are thinking that people do not appreciate you in the way or give the opportunities in the way you are like supposed to get. So I mean, if I want to make this for my professional life or for my career path, other than personal thing, वहाँ पर मैं अपना जब स्मार्ट टारगेट बनाता हूँ तो स्ट्रेंथ तो आ जाती है, अपॉर्चुनिटी भी देख लेता हूँ, थ्रेट भी बना लेता हूँ, अपनी वीकनेस में वहाँ पे एसेस नहीं करता। दोस्तों को बताइए, ऐसे बताएंगे आपको। Like professional में भी there are people who are going to tell you, talk to them. If you want to know and check your self-esteem, what is the right thing to do? The right thing is to do is just say anything bad about someone. Say anything bad about someone. और असेस कीजिए उसे, पता चल जाएगा वो कैसा है। एक बहुत मशहूर मुसव्विर था जिसने कहा कि गुजरते हुए किसी के पैर पे उसका पैर पड़ गया, तो उसने उसे खूब सुनाई। जब वो सुना के खामोश हो गया तो उसने कहा कि मैं फला हूं। तो उसने कहा ओ आई एम वेरी सॉरी, पहले बता देते, मैं ये सब ना बोलता, अपना तारुफ पहले करा देते। कहेंगे नहीं, उससे पहले आप अपना तारुफ करवा रहे थे। तो जहां हमारी दुखती नर्व पे हाथ रखा जाएगा ना, वहीं से हमारा तारुफ शुरू हो जाएगा। गलत बात पे गुस्सा आ जाता है। कौन है जिसको गलत बात पे गुस्सा नहीं आता? चलिए हाथ उठा के नहीं आता मुझे गलत बात पे गुस्सा। गुस्सा तो आता ही गलत बात पे है, सही बात पे किसको गुस्सा आता है? लोगों को आ जाता है कभी। वो उनके लिए गलत होती है, इसलिए वो उनके परसेप्शन गलत। सही बात को गुस्सा आने चाहिए। तो रुकना तो वही है ना, रुकना तो वही है जहां पे गुस्सा आ रहा है, वहीं से तो तारुफ शुरू होता है। तो वहीं पे तो रुकना है। अपना तारुफ देने से पहले सोच लीजिएगा, या गुस्सा करने से पहले सोच लीजिएगा कि वहीं से आपका तारुफ शुरू हो रहा है।
सो यस वीकनेसेस आर देयर, लेकिन हाँ मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि कोई आए तो एक थप्पड़ मारे हमके लीजिए दूसरा भी ले लीजिए, है ना। इतने भी अच्छे बनने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अब गांधी को फॉलो करो, तो ऐसा भी नहीं है ना कि आगे दूसरा बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि एक मारा है तो आप जवाब में कहे छोड़ूंगा नहीं मैं, तो मिल जाए अभी जरा मुझे, एक के दो ना लगाए मैंने तो मेरा नाम भी नहीं है, राइट। तो वीकनेस अगर है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वी नो अबाउट इट, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, आई एम नॉट सेइंग दैट इन अ डे वी आर गोइंग टू ओवरकम दैट or we are going to remove that. It is not possible.